सैलरी का मैंने 3 फेज कंप्लीट कर लिया था, दैट इज सैलरी, बेसिक डीए, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस मिला के, एक परक्विजिट्स और दूसरा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब मेरा लास्ट प्लॉट रहता है दैट इज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में 3 आप लोगों को आता है, एक ग्रेचुइटी, एक कम्यूटेड पेंशन एंड लास्ट है लीव एनकैशमेंट। तो आज हम कोशिश करेंगे ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट कराने के लिए, ग्रेचुइटी एंड कम्यूटेड पेंशन कराने के लिए नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। चलिए, ग्रेचुइटी क्या होता है? बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन में इतना दिन थे, एज ए ऑनर, एज ए ग्रेचुइटी, organization will pay you something in addition to your salaries at the time of your retirement as an owner for the service which you have rendered over the last 20 years, 30 years or like that, just to honor you. So that is a benefit. Naturally that benefit has given by the employer to employee. Now question is, if that is a benefit, the next questions come in your mind that what is the taxability of such kind of benefit? Now, it is the last part we are entering here to discuss the taxability of the gratuity which is received by the employee at the time of his retirement from employer. Before that, I have to say that few organizations, there are 2 types of organization. One type of organization where gratuity which are covered in the organization for the sake of employees benefit is covered under Gratuity Act, and another that is not covered under Gratuity Act. That is a organization which is not covered under Gratuity Act or the organization which is covered under Gratuity Act. Now what is the significant difference from the tax point of view? We will discuss here. First of all, gratuity is the payment in cash made by the employer to employee for his continuous service to the organization as an appreciation, of his service over the years. बहुत साल तक जो आपने काम दिया है उसका ऑनर आपने मुझको छोड़ के नहीं गए, दैट इज अ लॉयल्टी, इसके कारण आपको बेनिफिट मिलता है। द टैक्सेबिलिटी इज डिस्कस इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए, अगर ग्रेचुइटी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम लोगों को जो मिलता है ग्रेचुइटी रिसीव्ड अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, दैट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। इसका एक कारण है, हम लोगों का एक लिमिट तक मिलता है, उससे बाहर नहीं मिलता है, तो दैट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर मिलता है ग्रेचुइटी तो फुल्ली कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी, fully exempted. So gratuity is fully exempted if it received by the government employee. Next, if gratuity received from the private sector, then what is the taxability? Now in that point we will discuss the matter under 2 separate categories. First, it is covered under Gratuity Act, and second, not covered under Gratuity Act. First, it is covered under Gratuity Act. So exemption is calculated as follows: gratuity received less exempted under section 10, subsection 10, lowest one. What are the lowest one? First, amount of gratuity received. Next, 15/16, बेसिकली होना चाहिए था 15/30, लेकिन वहां पर मैंने लिखा है 15/26 बिकॉज गवर्नमेंट मानता है 4 हॉलीडेज इज कंपल्सरी फॉर द एक्ट, बोलता है ग्रेचुइटी कवर एक्ट बोलता है 4 हॉलीडेज आर कंपल्सरी फॉर एनी फैक्ट्री टू ऑपरेट, दैट इज 4 संडेज।
तो दैट्स व्हाई 30 माइनस 4 करके हम लोगों ने लिखा है 26. सो 15 by 26 into the last drawn salary. I repeat, last drawn salary into yes. স্যার 15 এর পোরশনটা একবার বলবেন, 26 টা তো বুঝলাম। বেসিক্যালি হাফ মান্থ এভারেজ স্যালারি, তো লজিক্যালি হওয়া উচিত ছিল 15 by 30. হ্যাঁ, তো 15 টা 15 রইলো, নাম্বার অফ ওয়ার্কিং ডেজ অন অ্যান এভারেজ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ডেজ অন অ্যান এভারেজ কনসিডারিং 15 divided by logically হওয়া উচিত ছিল 30, but they are considered 30 minus 4 26. আচ্ছা, মানে 15 টা বেসিক্যালি এভারেজ, 15 টা এভারেজ হওয়া উচিত ছিল 15 by 30 এভারেজ, 15 by 30 করলে দেখ 1 by 2 আসে। হ্যাঁ, তো টু কভার দ্যাট 1 by 2 ওটাকে করা হলো 15 by 30, बट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट यहाँ पर क्या होता है, 4 दिन कंपलसरी छुट्टी। सो 30 minus 4 संडेज माइनस করলে চলে আসছে 26, सो दैट्स व्हाई 15 by 26। अरे एक बार फिर से बोलिए ना। एवरेज का मतलब होता है 15 by 30, दैट इज 1 by 2। नाउ 15 by 13 होने के लिए 30 मतलब क्यों 13, एवरेज के लिए हाफ मंथ का एवरेज मानता हूं, हाफ मंथ मतलब 15 डेज, और 1 मंथ इक्वल टू हम लोग मानते हैं कितना 30 डेज। लेकिन ग्रेचुइटी एक्ट बोलता है मिनिमम 4 हॉलीडेज आपको देना ही पड़ेगा, तो इसलिए 30 माइनस 4 हो जाता है तो 26 आता है, दैट्स व्हाई 15 by 26। ठीक है, यस सर। into last drawn salary into completed year of service or part thereof in excess of 6 months। इसका मतलब क्या है, कंप्लीटेड ईयर, अगर फुल ईयर रहते हो तो ठीक है, और पार्ट देयरऑफ मतलब सर मेरा नौकरी 25 साल 6 महीना हुआ है, 25 साल 5 महीना हुआ है, तो मेरा कितना नौकरी माना जाएगा, 25 साल और 26 साल, आंसर होगा 25। व्हाई, कंप्लीटेड ईयर तो 25 है, और पार्ट देयरऑफ उसका कुछ अंश इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, लेकिन सर यहां पर तो 6 मंथ से ऊपर नहीं है, तो मैं इसको 25 ही मानूंगा, 26 नहीं मानूंगा। सर यहां पर अगर 25 years 8 months बोलता 100% हम लोग मानेंगे 26 years, बिकॉज कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 6 महीना से ऊपर अगर किसी ईयर में आपका नौकरी है तो उसको भी कंप्लीटेड ईयर ही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन 6 महीना के ऊपर होना चाहिए। लास्ट स्टैट्यूटरी लिमिट 20 lakhs, क्लियर और नॉट। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) में क्या है, फर्स्ट ग्रेचुइटी रिसीव्ड, नंबर 2 15 by 26 into the last drawn salary into the completed year of service or part thereof in excess of 6 months, next statutory limit rupees 20 lakhs, that is a taxable gratuity। Now question is, what is a salary means? इससे पहले आप लोगों ने कितना बार सैलरी किया है, कितने बार, 3 बार। एक थप्पड़ गला ही दबा दूंगा, 4 times। कौन कौन, HRA, नेक्स्ट PF, नेक्स्ट एकोमोडेशन, वेरी गुड, 4 फिर से गया इंटरटेनमेंट, बेसिक सैलरी के ऊपर गला ही दबा देना चाहिए तुम लोगों को। सर एंटरटेनमेंट तो सिर्फ ओनली बेसिक के ऊपर है सर। पूछा है कितने बार सैलरी का डेफिनेशन तुम्हारे सामने आया है, ओके सर, ओके। बार बार इंटरटेनमेंट तुम लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हो। सैलरी तो यहां पर लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। देखिए यहां पर डेफिनेशन में कमीशन अलाउंसेस ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोला है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, क्लियर और नॉट? यस सर। तो मैंने क्या बोला, अगर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है सर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट मिलता है तो 2 एरिया में कवर हो सकता है, एक कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट होगा तो एग्जेम्पशन क्या है, लोएस्ट ऑफ द 3, एक में है ग्रेचुइटी रिसीव, दूसरे में स्टैट्यूटरी लिमिट 20 lakhs, और बी
15/26 into last drawn salary include completed year of service or part thereof in excess of 6 months. Okay, that is taxable gratuity. Done. सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए और कंप्लीटेड ईयर का मतलब सर एग्जाम्पल completed year or part thereof okay. Mr. A completed Mr. A completed 25 years 9 months in ITC Limited. Year completed year is कितना होगा 26 years, in excess of 25 years. 6 months, हाँ 26 years. 26 years. Clear or not? Yes, sir. B completed 9 months के जगह 3 months क्या होगा 25 years. ठीक है और Yes, sir. यहां पर सिर्फ बेसिक एंड डीए को लेंगे और किसी को नहीं. नाउ अगर सर वो कवर्ड नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट होता exempted अंडर सेक्शन 1010 में लोएस्ट क्या होता है अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड इनटू अब आया समझ में हाफ मंथ एवरेज सैलरी. एक्चुअली इनकम टैक्स ने बोला था हाफ मंथ एवरेज सैलरी मतलब 15/30 लेकिन ग्रेचुइटी में 30 डेज अ मंथ नहीं होता है 26 डेज अ मंथ होता है तो दैट्स व्हाई 15/26. लेकिन यहां पर देखो हाफ इनटू एवरेज सैलरी इंक्लूडेड इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. मैंने यहां पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बोला है इन पार्ट फार्ट कुछ नहीं बोला है. एवरेज सैलरी का मतलब क्या है देखना पड़ेगा. स्टैट्यूटरी लिमिट 20 lakhs माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज आपका टैक्सेबल सैलरी टैक्सेबल ग्रेचुइटी. नाउ यहां पर सैलरी का मतलब देखो तो जान पहचानते हो ये सर नो सर एचआरए वाला. वेरी गुड प्रोविडेंट फंड वाला एचआरए वाला. अच्छा यहां पर तो और एक एडिशनल वर्ड लिखा है जो पहले नहीं था एवरेज सैलरी. एवरेज मतलब क्या होता है बेटा सर कुछ महीनों को ऐड करके एवरेज पर मतलब जितना महीना का सैलरी उसको ऑन एवरेज करना मीन निकालना. तो यहां पर कौन सा कितना महीने का एवरेज करोगे 2 महीना 4 महीना 5 महीना 10 महीना 11 महीना जब 24 मंथ्स कितना बोला है सिंपल सम ऑफ द लास्ट 10 मंथ सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट मतलब जिस महीने में रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़ दो. जिस महीने में रिटायरमेंट हो रहा है उस महीने को छोड़ के बाकी महीने में वो क्या करेगा जिस महीने में रिटायर हो रहा है उस महीनों को छोड़ के प्रीसीडिंग बैक 10 मंथ्स का टोटल सैलरी करके डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10 मंथ्स एवरेज सैलरी जो एवरेज कैलकुलेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ्स. क्लियर? क्यों सर? इनकम टैक्स में वही लिखा है दैट इज इनकम टैक्स में जो वैल्यूएशन का तरीका बताया है वहां पर एवरेज सैलरी इसी तरीके से बोला है. ये प्रोविजन में है मेरे हाथ में नहीं है सर. कंप्लीटेड ईयर ऑफ मतलब
क्या होगा? बोलो। बोलो बोलो। सर मैंने सिर्फ 25 कंप्लीटेड ईयर पूछा है। सर ओनली कंप्लीट 25 25 यहां पर 25 समझ में आया? 2 मिनट दूंगा, पूरा चीज को एक बार देख लो। 2 मिनट दूंगा पूरा चीज को देखने के लिए, जस्ट 2 मिनट्स। कोई सवाल अगले करो। सर बोलो। सर हम्म, सर किसी एम्प्लॉय को ग्रेजुइटी में कवर करना है या नहीं करना है, वो कैसे पता करेंगे? अब वो लिखा रहेगा, मैं क्वेश्चन का पैटर्न देख के समझना पड़ेगा। नॉर्मली लिखा रहता है ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। कभी कभी क्या सर करता है क्वेश्चन में लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी बोल देता है और कुछ नहीं बोला है, मतलब समझ लेना इट इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। वहां पर ये वर्ड लगता है लास्ट ड्रॉन सैलरी। कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज सैलरी बोल देता है, एवरेज सैलरी मतलब एक कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। और 90% केस में बोल देता है कवर्ड और नॉट कवर्ड। बोलो। सर इसका टैक्सेबिलिटी कब होता है सर? जब रिटायर होता है तब? ऑब्वियसली तो पैसा तो तब मिलेगा, ड्यू तो तब होगा। मैंने बोला था ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, मैंने तो ये नहीं बोला था एक्रूड, ड्यू, रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। एक्रूड वर्ड अगर बोलता तो हाँ, ग्रेचुइटी जब जमा हो रहा है तभी टैक्सेबल हो जाना चाहिए, वो वर्ड तो नहीं बोला था मैंने। सैलरी में बेसिस ऑफ चार्ज क्या बोला था? ड्यू और रिसीव्ड सर विच तब एवर तो इज ये सर सिर्फ अर्लियर। लाइफ में एक ही बार होगा सर। लाइफ में एक ही बार क्यों होगा? सर जब रिटायर होगा तो? वो 2 कंपनी में काम करता है, एक मॉर्निंग तो में, इवनिंग एक में। कंपनी में उसका जब लाइफ खत्म होगा तब? हाँ, उस कंपनी से लाइफ में उसको एक ही बार मिलेगा। नॉर्मली हर इंसान को एक बार ही मिलता है, एक साथ 2 एम्प्लॉयमेंट करेगा कैसे? अभी फुल टाइम हाँ कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, मैं एट द एज 26 में कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। रादर पार्ट टाइम में मैं 20 एट द एज 24 में था। 23 से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, तो 24 में मेरा मान लीजिए नौकरी है। 20 साल के बाद मेरा, मैं चाहूं तो मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता हूं, तो चलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट मैंने ले लिया, वेरी गुड। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में मुझे ग्रेचुइटी देगा, यस। उसके बाद मैंने क्या किया, आईआईएम ज्वाइन किया। आईआईएम में भी मुझको, मैं वहां पर, मेरा जो उम्र है तो मैं आराम से 20 साल 25 साल वहां पर नौकरी कर ही सकता हूं, वहां पर भी ग्रेचुइटी मिला। तो लाइफ में 2 बार तो हुआ ना। जो टेनेसिटी है 70 इयर्स तक पढ़ा सकता हूं, डन। यस सर। हाँ, बुढ़ा हो जाऊंगा क्या उल्टा पुल्टा पढ़ाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ा सकता हूं। चलो, मिस्टर रंजीतवा रिटायर्स ऑन 39/2020 आफ्टर completion of service 22 years 9 months. He received the gratuity 15 lakhs. His last drawn salary, basic salary 50,000. Last increment 1/1/2019 rupees 22,000. DA 75%. On basic salary 80% forming part. Compute the taxable gratuity assuming बोली दिया है covered under gratuity act, not covered under gratuity act.
ठीक है, करे সলিউশন। মন দিয়ে সবাই দেখবে, কারণ একটা কোশ্চেন থাকবেই 5 নম্বরে। सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, कवर अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय मिस्टर बाय रंजीत, क्या बोलोगे? बेसिक बेसिक सैलरी लास्ट ड्रॉन, कितना लास्ट ड्रॉन बेसिक? लास्ट ड्रॉन बेसिक 50,000 बोली दिया है। लास्ट ड्रॉन बेसिक 50,000। add DA forming, yes or no? yes sir DA forming part कितना? आई थिंक तुम लोगों को आप समझ में आ रहा है कि क्यों फॉर्मिंग कराया था सर ने। कितना? 50,000, इसके ऊपर 75% इज अ DA, यस और नो? उसमें फॉर्मिंग पार्ट कितना है और नॉट फॉर्मिंग पार्ट कितना है? तो फॉर्मिंग पार्ट बोलो। $50,000 into 75% into 80%, 30,000, दैट इज क्या है? लास्ट on salary 80,000, am I correct? Completed year of service, year of service कितना? 23 years. सर 80,000 हुआ होगा। months, 9 months, 22 years, 9 months, क्या होगा? क्या होगा? 23 क्या बोला था? अगर नॉट कवर अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है तो फुल कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ। सर। हाँ बोलो सर ऊपर में सर 80,000 होगा। हाँ बेटा। सर आप कर्सर के ऊपर सर 50-30,000 को सर ऐड करके 80,000। हाँ ओ अच्छा सॉरी। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इक्वल टू 23 इयर्स। हाँ কমপ্লিটেড ইয়ার অফ সার্ভিসটা বুঝলাম না। completed year of service in part of excess of 6 months in case of covered under gratuity act, তাহলে কি হলো? completed year হলো 22 years plus in part of ওর কোনো অংশ if in excess of 6 months, তাহলে ওটাকে 1 year করবে। 22 years plus 1 years, কেন 1 year স্যার? 9 month তো 6 এর উপরে, তো that is equal to 1 হয়ে গেল। তো 22 years plus 1 years equal to 23 years since it is covered under gratuity act। আচ্ছা স্যার 6 মান্থস এর নিচে হলে 22 ইয়ার্স ই নিতাম তাই 22 তো? ই হতো, এক্স্যাক্টলি রাইট। আমি ইলাস্ট্রেশন দিলাম তো। হ্যাঁ আর স্যার 6 মান্থস থাকলে? আমি বলেছি ইন এক্সেস অফ। আশা করি তুমি বুঝে গেছো আমি কি বললাম। হ্যাঁ
Rituparna, any doubt? Sure. Taxable gratuity for the previous year 2020-21. Oh, sir. ठीक है. Not covered under covered under gratuity act. वो तो लिखी ही है सर, कतबार लिखबेन, लिख दिया है. Particulars. Gratuity received. कितना? 15 lakhs. Less exemption under section 10 subsection 10. Lowest one. Gratuity received. कितना? B. बोलो. 15 by 26. 15 lakh और ये 15 by 15 26. by 26. Sir, 15 by. $15 by 26 into completed years. सर लास्ट टाइम सैलरी होगा ना. अच्छा लिखूंगा. into last drawn salary. क्या होगा बोलो तो? into completed year है 23 into last drawn salary कितना? 80,000. last drawn 80,000 मैंने करके रखा है. बोलो. 10,61,538. 10,61,538. 538. statutory limit माने मतलब मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन हो सकता है? स्टैट्यूटरी लिमिट $20 lakhs. Exemption how much?
10,61,538. Lowest one. Taxable gratuity. कितना? 4,38,462. Agree? No. Up covered under Gratuity Act. Not covered under Gratuity Act. क्या होगा? लास्ट ड्रॉ नहीं, एवरेज सैलरी। Average salary preceding the month of retirement. मंथ ऑफ रिटायरमेंट का मतलब कौन सा मंथ में रिटायर किया है? और रंजीत रिटायर ऑन 39/2020 मतलब 39 सितंबर को छोड़ के, तो सितंबर को छोड़ने का मतलब है मंथ, बेसिक सैलरी सितंबर छोड़ के, बिकॉज सितंबर का मंथ में रिटायर हुआ है तो वो रिटायरमेंट का मंथ छोड़ के अगस्त 2020। उसके बाद जुलाई 2020, जून मई, अप्रैल। ऐसे ही 10 हो जाएगा, आप लोग चिल्लाएंगे। मार्च, फरवरी, जैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन, नवंबर तक, दिसंबर, नवंबर, 2019 बोलो बेसिक। सर रिटायरमेंट के महीने में क्या था? देखिए तो 50,000 था। 50,000 था, वो भी लास्ट डेट में, मतलब 39 में उसका 50,000 था। इंक्रीमेंट शुरू हुआ था 1/1/2020 में 2000, मतलब 2 जनवरी 2020 से उसको इंक्रीज सैलरी मिलता था। यस और नो? जनवरी 2020 से उसको इंक्रीज सैलरी मिलता था। दैट इज 50,000, जून 50,000, मई 50,000, अप्रैल 50,000, मार्च 50,000, फरवरी 50,000, जनवरी 50,000। पंकज बोलो दिसंबर नवंबर में कितना था? 48,000। वेरी गुड, क्लियर? सबको पूछ रहा हूं। यस सर। जनवरी में से तो चेंज हो गया 55, वही कंटिन्यू रहा।
नवंबर तक मिला था, सितंबर तक मिला था, लेकिन हम लोग सितंबर कंसीडर नहीं करेंगे प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इसलिए सितंबर को छोड़ के किया है। डन और नॉट? यस सर। अच्छा, टोटल बेसिक लास्ट 1,96,000. salary last 10 months, done. কত how much? 4,96,000. 1 lakh 4,96,000. 96. DA forming how much? बेसिक लीजिए सर, उसके ऊपर 75% मारिए, डीए निकल जाएगा, इनटू सर 80% फॉर्मिंग पार्ट, इसलिए बोलो 2,97,600. 2,97,600. 97,600. नील, क्या नील? कमीशन ऑन टर्नओवर कुछ है? कमीशन ऑन टर्नओवर नील, क्या होगा? सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, how much? 7,93,600. 7,93,600. Average salary, कितना? Divided by 7,93,600 divided by 10, how much? Yes or no? बोलिए, कोई डाउट? 79,000. Sir, 79,360. 79 होगा. 60. 360. Okay. Yes sir. Taxable gratuity 15 lakh, exempted lowest one, gratuity receive gratuity up 15 by 1 by 2 into completed years into average salary. average salary. So 1 by 2 into 23 na 22. Completed salary, a completed year 22 years, और पार्ट देयरऑफ का कोई सवाल नहीं है, ठीक है? कंप्लीटेड ईयर में तो पार्ट देयरऑफ मैंने नहीं बोला था, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर 22 years. Yes sir. तो 22 into how much? 79,600. कितना होगा? 8,72,960. 8,72,960. 72,000. Which one is lowest? Taxable gratuity, how much?
6,27,040. डन। कवर अंडर ग्रेचुइटी में लास्ट ड्रॉन क्या बेसिस में और नॉट कवर ग्रेचुइटी में ये प्रीसीडिंग द मंथ वाला रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे दिखाऊं मुझे पता नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी Sir. जगह में तुमको प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट लगेगा, यहाँ पर प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, मतलब रिटायरमेंट का मंथ छोड़ के बाकी 10 महीना। अगर सर यहाँ पर 2000 का इंक्रीमेंट नहीं रहता देन हम लोगों का प्रॉब्लम ही नहीं है, मान के चलूंगा सेम बेसिक ओवर द लास्ट 10 years एंड डू अकॉर्डिंगली। डन। सर हाँ बोलो। यस सर। सर प्रीसीडिंग ईयर को मतलब छोटा करके नहीं दिखा सकते, जैसे जनवरी टू अगस्त 50,000 into 8 months। जो मन में आया करो, मेरा तजुर्बा बोलता है ये करने से तुम लोगों का गलती कम होगा। अगर तुमको लगता है मैं ब्रैकेट में वो करके करूंगा, करो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कराता हूं। इलस्ट्रेशन 2 आप लोग करेंगे। यहां पर भी इंक्रीमेंट एवरीथिंग इज गिवन, कमीशन एडिशनल बोल दिया है। assuming he is a non-government employee and not covered under gratuity act, करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद आता हूं पेंशन। देखिए पेंशन दो प्रकार का होता है, वन इज मंथली पेंशन, अनदर इज कम्यूटेड पेंशन। मंथली पेंशन मतलब हर महीने आपको पैसा मिलना, दैट इज मंथली पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब आप बोल रहे हैं मुझे हर महीने पैसा नहीं चाहिए, मुझे लमसम दे दीजिए। लमसम मतलब एक साथ पैसा मुझे दे दिए, इसको बोलते हैं कम्यूटेड, COMMUTED, मतलब ब्रेक करना, बेचना, कम्यूटेड पेंशन। तो फैमिली पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन, फैमिली पेंशन के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है और कम्यूटेड पेंशन के लिए टैक्सेबल होगा लेकिन एग्जेम्पशन भी मिलेगा। यहां पर मैं दो कैटेगरी में डिस्कस करूंगा, ये वेरी इजी है। कम्यूटेड पेंशन रिसीप्ट मतलब जितना कम्यूटेड, अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट होता है तो कम्यूटेड पेंशन रिसीप्ट जितना पेंशन बेचने से पैसा मिला है, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A लोएस्ट वन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कम्यूटेशन, बेचने से जो पैसा मिलता है वो इनटू 1/3 ऑफ द फुल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। मतलब अगर पूरा ही कम्यूट करते तो कितना वैल्यू को मिलता, उसका 1/3 करने से जो मिनिमम आएगा वही एग्जेम्पशन मिलेगा, दैट इज टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। सर ये एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुइटी क्यों है सर? थोड़ा कराने दो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर एम्प्लॉय नॉट रिसीव ग्रेचुइटी तब देखिए सेम टू सेम हाफ हो गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन दो बेनिफिट दे सकता है। अगर ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, एनी टू, तो ग्रेचुइटी दिया, मान लो जो लीव एनकैशमेंट नहीं दिया, तो लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुइटी जब देता है तब वो क्या देख रहा है, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन। मतलब ग्रेचुइटी मतलब उसको ऑलरेडी एक बेनिफिट मिला है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं मुझे फुल एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, मैं फुल एग्जेम्पशन आपको नहीं दूंगा, 1/3 दूंगा। और जब तुमको ग्रेचुइटी नहीं मिलता है, मैं इनकम टैक्स बोलता है नहीं भाई मैं तुमको एग्जेम्पशन थोड़ा ज्यादा दूंगा। बोलो तो हाफ ज्यादा है ना 1/3 ज्यादा है? 1/3 मतलब एग्जेम्प्टेड होता है हाफ ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई नॉट कवर्ड ग्रेचुइटी मतलब वो उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलता है, नॉट कवर्ड ना, नॉट रिसीव ग्रेचुइटी मतलब उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा एग्जेम्पशन उसको ज्यादा दिया, और जिसको ग्रेचुइटी मिलता है उसको एग्जेम्पशन कम दिया। अगर आप कम्यूट करते तो इसके लिए ये वर्ड होता है। यहां पर एक वर्ड आता है फुल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। फुल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, इट इज अ लंप सम अमाउंट रिसीव्ड इफ द एंटायर पेंशन हैज बीन कम्यूटेड और सोल्ड। जो मैंने बताया, अगर पूरा ही पेंशन अगर आप बेच देते हैं तो आपको कितना मिलता है, दैट इज अ फुल कम्यूटेड वैल्यू। It is calculated as follows: amount received from commutation, commutation से कितना मिल रहा है, into 100% divided by commuted percentage। मान लीजिए
6 लाख रुपए मिल रहा है आपको 60% कम्यूट करके। मुझे ये बताइए तो आपका टोटल पेंशन का अमाउंट कितना है? टोटल कम्यूटेड पेंशन मतलब पूरा ही बेच देते तो कितना मिलता? 10 लाख। कैसे किया? 100/60 करके। वेरी इजी। सर 6 lakh divided by 60%. यस 60% बेचने तो 9 पूरा 60% बेचने से आपको पैसा मिलता है 6 लाख रुपया। 100% फुल कम्यूट करते तो कितना मिलता? 10 लाख। अच्छा बोलो तो 2/5 बेचने से आपको मिलता है 4 लाख। फुल पेंशन कितना है? क्या बोले सर? सर 10 lakh है। बेचने से 2/5 पोर्शन ऑफ पेंशन बेचने से आपको मिलता है ये 4 लाख रुपया। फुल पेंशन का वैल्यू कितना है? फुल बेचते 10 lakh है सर। John. कितना? सर 10 lakh। 4 into 5/2। 2/5 में 4 लाख, एक में कितना होगा? 5/2। ठीक है। Mr. Rahmatullah retired on 1/1/2021 from a company and he is entitled monthly pension rupees 8,000 from January 21. Okay. He commuted 60% of monthly pension and received rupees 7,50,000. Compute the taxable pension and the taxable commuted pension for the previous year 2021. Solution. Full value of pension. Very important. Full value of pension. क्या है फुल वैल्यू बेटा बोलिए तो? सर 60% of commuted pension equal to rupees 7,50,000. Yes or no? 100% of commuted pension कितना? बोलो। rupees 750 into 100/60. Yes or no? सबसे पूछ रहा हूं, is it okay or not? यस सर। Yes sir. 7,50,000 into 100/60. Figure comes to 12,50,000. Done. Okay. Yes, sir. चलो 12,50,000. Now, received gratuity. Case 1. Received gratuity.
पेंशन, मंथली पेंशन, कब से उसको पेंशन मिलेगा सर? जनवरी महीने से मंथली पेंशन। बोलो तो कितना बेटा? सर देखिए उसका मंथली पेंशन क्या बोला था, रहमतुल्लाह को मंथली पेंशन 8,000 जनवरी 2021 से मिलना चाहिए था, लेकिन 60% ऑफ मंथली पेंशन उसने कम्यूट कर दिया, मतलब बेच के पैसा ले लिया। तो उसको कितना मिलेगा बेटा पेंशन में? पूरा 8,000 मिलेगा? नो सर, कितना? नहीं, 60% बेच दिया तो 40% 40% मिलेगा। नेचुरल नियम सर, इनटू 3 months, हाउ मच? 8,000 into 40% into 3. 9,600. Agree? Okay. Yes sir. उसके बाद टैक्सेबल, अच्छा कम्यूटेड पेंशन, पेंशन रिसीव्ड कितना? 7,50,000 सर। लेस एग्जम्पशन is better to do less exemption under section 10 subsection 10A। क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कम्यूटेशन कितना? 7,50,000। अच्छा एग्जेम्पशन ज्यादा मिलना चाहिए ना कम मिलना चाहिए? उसको तो एक बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, रिसीव ग्रेचुइटी उसने किया है, तो उसको एग्जेम्पशन ज्यादा देना ना कम देना है? कम देना है। कम दे। कम देना। हाँ 50% कम होता है ना, 33 1/3% कम होता है, 33 1/3%। यस सर। तो 1/3 into full value of pension, that is 1/3 into कितना? फुल वैल्यू पेंशन 12,50,000, फिगर कम्स टू 4 lakh 4,16,667। तो लोएस्ट विच वन? 4,16,667। बोलो टैक्सेबल कितना हुआ? 3,33,333। यस और नो बेटा? यस सर। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा दो मिला के? 3,42,933। हाँ सॉरी 3,42,933। चलिए सेम क्वेश्चन को करेंगे। नॉट रिसीव ग्रेचुइटी। सर मंथली पेंशन में नो चेंज, ग्रेचुइटी में नो, कम्यूटेड पेंशन में नो चेंज, लेकिन यहां पर 1/3 की जगह क्या हो जाएगा? हाफ। 1/2। हाफ इंटू फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। बोलो कितना? 6,25,000।
लोएस्ट वन, अच्छा एग्जामिशन में मैंने वर्ड नहीं लिखा था, लोएस्ट वन वो लिखना चाहिए, लोएस्ट वन। ऊपर में भी लिखना चाहिए था, यस। कितना होगा बेटा? 6,34,600 सॉरी, 6,25,000। सर 6,25,000 हाँ तो 7 लाख माइनस 6 सर लाख 1,25,000 नहीं सर टैक्सेबल 1,25,000 प्लस 9,600 1,39,600 34,000। ओह सॉरी यहाँ पर गलती से ज्यादा 3 हो गया था। क्लियर और नॉट? यस सर इसको भी मैं होमवर्क रखूंगा, आप घर में करेंगे। चलो, एनी डाउट यहां तक? पेंशन एंड ग्रेचुइटी, कोई डाउट सर। यहां तक? सैलरी क्लास नंबर कितना है बोलो तो? आई थिंक 13। कल का क्लास में एक ही बच्चा है, लीव एनकैशमेंट। चलो बोलिए।